अब एक सुपारी बिजनेस का कंपनी शुरू करते हैं। इस बिजनेस में क्या है, ये नासिक से एक रिक्वेस्ट था मेरे पास, मैंने उनको डेमो भी दिखाया था। बाद में उन लोग क्या करते हैं, सभी उनका विदाउट बिल का बिजनेस एक्सेल में कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, फॉर्मूला एडिट करते हैं, बाद में हंसते बैठते हैं। इन लोगों को एक्चुअली क्या है, शायद ये पसंद नहीं आया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। अब क्या कर देता हूँ, मैं एक कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। बोलते बोलते जाता हूँ, अभी ये बीच में बोल दिया तो आपको उतना मजा तो नहीं आएगा। इसमें क्या है, हेडर और बॉडी का यूज ही नहीं होता है। इस कंडीशन में हेडर और बॉडी का यूज ही नहीं होता है। इन लोग क्या करते हैं, अभी तब जीएसटी कंपनी क्रिएट हो गया, इसमें इनका क्या है, क्वांटिटी सीरियल नंबर, आइटम सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 थैली लेफ्ट से राइट को रख देते हैं जमीन पर, so that means so on the floor. Then 6 7 8 9 will reload, just like they pile up the bags of supari, that is the bags of areca. Similarly they want to get the item to be they want the quantity to be printed. In this case they pay only money for the gross weight. What does that mean? That means if a bag is 70.2 kg, then that will include the weight of the bag itself. So they are paying the money for the supari, where bag weight to be deducted by the weight of the plastic bag inside. So the gross weight is being considered in this case. So accordingly I have done the entire process. You may not like it, but concept wise it is very good. क्योंकि जो सीक्वल को, एसक्यूएल क्वेरी को परफेक्टली सीखना चाहता है, उन लोगों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए सुपारी ग्रेड ये हमारा तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस में यूज होने वाला चीज नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी ऑड। सी, दे वांट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ केजीज एंड एज वेल एज बैग्स। बैग का भी काउंट चाहिए, and they want even the weight of the supari in terms of grades and in terms of bags. See, ग्रेड ए का इसका मतलब क्या है, ग्रेड ए का आज कितना थैली बच गया है उनका गोडन में, ग्रेड बी का कितना थैली बच गया है in terms of kgs and as well as that you want to maintain the accounting in that fashion. So for maintaining that, first in the futures and options I have enabled alternative quantity. See, this is I am creating the item. Item name is supari grade A. Here I will take kgs, and in alternative unit I will take numbers. Bag, yes, it's bag. यहाँ क्या होता है, I am defining a standard quantity of 70 kg per bag, 72 kg per bag, but normally here I am declaring it as 72 kgs per bag, but in some cases it will vary. Whenever that is varying, I am altering that while at the time of purchase. अब देखिए, at the time of purchase means how, that is in terms of item description boxes. See, I have enabled item sizing information there. Now what I do is, now supari grade A, I have created supari grade A, copying that, and now instead of A I will make it B. So a duplicate master being created, everything is being same. So once again I will create a duplicate master. I have created a duplicate master here. Now I have supari grade C, rest all features being same. अब देखिए, अब now I go to administration, voucher configuration. Here in the purchase voucher itself, I am clicking here on the sales voucher, but of course it is not needed for me right now, being you can make it out, doesn't matter. यहाँ देखिए मैं क्या कर देता हूँ, लाइन 1 से लाइन 2 का लेस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ग्रॉस वेट। ग्रॉस वेट का मतलब मिला के, बैग मिला के। So if I subtract gross weight
बैग वेट फ्रॉम ग्रॉस वेट, देन दैट विल बी द टेल वेट। सुपारी का पैसा देता है वो ग्रॉस वेट से निकाल के, सिर्फ इसके लिए पैसा देता है। अब L1 माइनस L2, L1 माइनस L2, it is the formula defined for sales, but I am making out purchase entries. See, this is being same for purchase and as well as for sales. अब तो ये हो गया, अब तो हो गया. Now actually I would have made it for purchase invoice, whereas I have done it for sales invoice. अब देखिए मुझे तो दोबारा वापस जाना पड़ेगा. I have to go back. Now there is no other way. I have to go back. Purchase bar 1. Now I have pressed F3. After pressing F3, I am going to add an account. Farmer 1. Farmer 1. ये ग्रुप तो होगा सेंट्री क्रेडिटर. हम फार्मर से माल खरीदते हैं और फार्मर को पेमेंट करना पड़ेगा. इसके लिए इसको लेना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप पे. ये डेमो दिखाने के लिए यहाँ मैंने ऐड किया 10 bags. नो, this won't work. This will not work because I have not deducted. So now there is no other go. I have to go back. अब मुझे नहीं, ये नहीं चलने वाला है क्योंकि it's not coming up. So I have to quit it. I have to go back to voucher configuration. यहाँ परचेज वाउचर को मैं लेता हूँ जो सेल्स को किया था. ओके, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ भी करना पड़ेगा. यहाँ आइटम डिस्क्रिप्शन में मैं आई एम गोइंग टू ऐड 2 descriptions. First one will be the gross weight. Second one will be the bag weight. सुपारी प्लास्टिक थैली में फोल्ड होके चला जाता है कंपनी को. ये 1 to 2. Here it is 12. It is not that 12. It is from 1 to 2. And my formula is L1 minus L2. L1 minus L2. Okay, अब ओके कर दिया. अब now we'll go back to purchase voucher entry. Now I'm going to add once again the purchase voucher entry. The date doesn't matter. I'm using demo version. So purchase 1. अब यहाँ क्या कर देता हूँ, फार्मर 1 ग्रेड ए यहाँ पे ओके आ गया. 72 kg वो बैग वेट मिला के. बैग तो 100 grams रहता है प्लास्टिक पॉलीथीन बैग. यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 330 रुपीज पर kg. अब F2 दबा दिया, 330 kg. ओके, अब सुपारी ग्रेड बी ये भी ले लिया. अब देखिए डमी वेट 68.4 kg ले लिया. यहाँ तो 0.1 kg ले लिया. अब देखिए नॉर्मली दैट 68.4 द कन्वर्शन फैक्टर आई हैव टू टेक 68.4. नाउ एक बैग 68.5 होता है. हाँ, अब देखिए वो विथ रेस्पेक्ट टू 72 kg वो 0.9 से कुछ आ गया बिकॉज दैट वॉज द 72 वॉज द स्टैंडर्ड वैल्यू. उसका हिसाब से वो ले लिया. अब प्रोसेस तो बहुत सिंपल है. 72 kg वेट ले लिया, उसमें 100 ग्राम लेस कर दिया, 71.9 kg हो गया. यहाँ तो 72 kg सेम है. यहाँ मैंने परचेज रेट, डिफॉल्ट परचेज रेट मैंने डिफाइन नहीं किया, इसलिए हर टाइम मुझे तो ऐड करना पड़ेगा. अब ग्रेड बी ले लिया. ग्रेड बी लेके अब 65 ले लिया. यहाँ तो ले लिया 0.1. अब 64.9 आ गया. यहाँ तो लेना पड़ेगा 65. कन्वर्शन फैक्टर यहाँ तो 65 है. हर बैग के लिए 72 नहीं है. यहाँ अभी रेट तो लेने का 295. अब सोच रहा हूं सुपारी ग्रेड बी. यहाँ लिया 68. यहाँ लेस करता हूँ 100 ग्राम, इसका मतलब 0.1 kg. यहाँ लेता हूँ 68 kg. इस स्टैंडर्ड बैग का वेट होगा 68 kg.
अब तो यहां तो लेना पड़ेगा टू, ये वट एवर द वैल्यू यू वांट टू पुट इन यू कैन पुट इन। यह तो वैट गिट कुछ नहीं, इसलिए अब सेव कर रहा हूं। ओके, अब सेव करने के बाद तो क्वेरी लिखना शुरू करना पड़ेगा। अब डिस्प्ले पे आया, SQL क्वेरी पे आया, लेट अस स्टार्ट राइटिंग SQL कोड्स। यहां से अभी शुरू करते हैं। अब क्रिएट शॉर्टकट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट F2, ये मेरा हमेशा फेवरेट शॉर्टकट है। अब क्वेरी सिस्टम में आ चुका हूं मैं, यहां पे क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूं। अब क्या जवाब देता हूं, सुपारी। सेलेक्ट ट्रांटूड, ये देखिए इसमें ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है। जो सीक्वल क्वेरी सीखना बोल के है उन लोगों के लिए ध्यान है तो दे दो, नहीं तो ये वीडियो आप ड्रॉप कर दो। ये समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा आदमियों के लिए, ये मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये बिजनेस ही है ऐसा। इन लोग एक्सेल शीट में करते हैं, एक्सेल शीट में जो करते हैं उसी एंट्री यहाँ पे अभी प्रिंट होके आना है। ये देखिए ये ग्रॉस वेट। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ नीचे लेता हूँ एंड, ये एमडी हो गया, उसको डिलीट करके एंड टाइप कर देता हूँ, या वेयर के सामने लिखता हूँ वेयर ट्रांटू डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड। अब देखिए इसका मजा, ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है। अब मैं क्या कर देता हूं, मैं इसका सारा प्रिंट आउट बॉडी में नहीं लेने वाला हूं, मैं तो लेता हूं फूटर पे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वोचर हेडर इन्वेंटरी लेता हूं मैं, बिकॉज आई कैनॉट मेक इट ए कंटिन्यूस प्रोसेस एज इट इज नॉट ए लूप। लूप इज whatever you put the queries, SQL queries at item body as well as bill sundry, the corresponding queries will repeat, but वो loop हो जाता है because they at the back end they have written loop, but in this case there is no loop, so it is not necessary for me to take tranto.sr number is equal to @item sr number @ oh, that is not needed for me। अब देखिए मैं 3 इंच का एक बिल फॉर्मेट बना रहा हूं, कितना भी बना सकते हो। 3 इंच का मतलब 80 मिलीमीटर पेपर। 80 मिलीमीटर में देखिए एक बिजी का हर टाइम हर एक बात को हम ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो देखिए टॉप मार्जिन मैंने ले लिया, अब लेता हूं, अब दोबारा लेता हूं, यहां पे टॉप मार्जिन मैंने ले लिया 0.25। ओके, लेफ्ट मार्जिन no, it's wrong actually. Yes, I'm going to recorrect it. It is 0.25 from the top, and for 3 inch I have selected 0.1 millimeter. देखिए आप वर्ड में जाओ या एक्सेल में जाओ या कोलेड्रा में जाओ या पेज मेकर में जाओ, वहां क्या हो जाता है, राइट लेफ्ट सबसेट का मार्जिन तो डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन बिजी आपको सिर्फ लेफ्ट और टॉप का मार्जिन बता रहा है। इन लोग तो ये तो नहीं बोल रहे हैं आपको राइट साइड का मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। अब क्या होता है, मैं अभी लेता हूं 3 इंच का। अब देखिए 0.1 इंच लेफ्ट में है तो मुझे 0.1 इंच राइट में भी देना पड़ेगा, तो मतलब 3 इंच के मतलब 30 कैरेक्टर्स। आउट ऑफ दैट 30 कैरेक्टर्स आई हैव टू डिडक्ट 0.1 दैट इज 2 कैरेक्टर्स। 28 कैरेक्टर्स तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अब इस 28 कैरेक्टर का हिसाब से मुझे तो सब बनाना पड़ेगा। अब देखिए रख देता हूं अनकंप्रेस्ड स्पेस, वो मुझे मिल गया है 28। एक इंच में 8 कैरेक्टर्स, सो 0.1 इंच में आपको अब मिलेगा 10 में 0.1 का मतलब 1 कैरेक्टर, एक मिलेगा तो 2 कैरेक्टर लेस किया तो 28 कैरेक्टर्स इंटू 1.2। अब देखिए आता है 33.36 डिवाइडेड बाय 1.8, क्योंकि मैं फॉन्ट 18 यूज करने वाला हूं, उतना के लिए मुझे तो 19। अब नीचे में फॉन्ट 18 यूज करने वाला हूं, अब फॉन्ट 18 ऑन कर देता हूं, फॉन्ट 18 ऑफ कर देता हूं। मुझे अनकंप्रेस्ड स्पेस है 28, सो अब क्या कर देता हूं, मुझे फॉन्ट 18 को की विड्थ ढूंढने के लिए 28 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1.8 ले देता हूं, तब तो मुझे एक्चुअली कितना स्पेस लेना वो मिल जाता है। अब देखिए यहां पे मुझे लेना पड़ेगा 19, I have to take 19 actually, it is 18, C। अब इसके सामने
मैं एक न्यू लाइन लेना पड़ेगा, नहीं सीपीआई ऑन सीपी ऑफ वो एड्रेस के लिए 28 इंटू 1.2 का मतलब कितना आता है 34 कैरेक्टर्स, 33.6 वो 34 आप ले सकते हो। अब बिकॉज आई एम यूजिंग 80 मिलीमीटर पेपर, ये सारा डिजाइन किसके लिए चला है 80 मिलीमीटर पेपर के लिए चला है। अभी मार्केट में 72 मिलीमीटर का पेपर भी आता है, अगर आपको 72 मिलीमीटर में बिल बनाना है तो आप 72 मिलीमीटर का पेपर को 80 इंच में कन्वर्ट करके उसमें 0.2 मिलीमीटर मिनिमम मार्जिन राइट एंड लेफ्ट का डिडक्ट करके जो मार्जिन आता है उसमें आपको लिस्ट बनाना है, नहीं तो आपका विड्थ में प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखिए मैं क्या कर देता हूं, BLH कमा 34 कामा डालना था, यह क्या हो गया कामा, ओके कामा 28, ये गलत है 28 नहीं है, 34 37 वो भी नहीं है, 34 कामा ये ऑटोमेटिक, ओके। अब कॉपी कर देता हूं, सेव कर देता हूं, अभी बॉडी में आता हूं, बॉडी में फुटर में आता हूं, बाहर चला जाता हूं। बाहर जाने के बाद अब क्या कर देता हूं, अब यहां पे आता हूं, परचेस पे आता हूं, सुपारी पे आता हूं, एक बार एक कोशिश करके देखता हूं, हेडर पे एक पेस्ट एक लाइन मैंने दिया है ना, इसलिए हेडर पे एक लाइन को लगा, हेडर तो ठीक है, अब दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब फुटर को क्या कर देता हूं, फॉन्ट 18 ऑफ किया। अब 28 अब देखिए 28 इंटू 1.2 28 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5, क्योंकि फॉन्ट 18 मीन्स दैट इज 180 टाइम्स हाइटर देन फॉन्ट 12। इसके लिए हमें क्या करना, वो एस्टिमेट पक्का आने के लिए हम तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए 28 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1.5। फॉन्ट 15 के लिए 22 कॉमा 22 कॉमा सी हो गया। बस अब सेव कर देता हूं। एस्टिमेट के लिए ऐसे किया। अब बोल्ड ऑन तो लिया, बोल्ड ऑन लेने के बाद बोल्ड ऑफ तो करना पड़ेगा। सेव किया। अब प्रीव्यू में देखता हूं, जो परचेस इनवॉइस मैंने एंट्री किया है उसका प्रीव्यू में देखता हूं। अब देखिए इस कंडीशन में अब तक मैंने आपको इनका रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं दिखाया है, सिर्फ फुटर दिखाया है। आप लोगों को ये तो समझ में नहीं है क्योंकि ये मैंने ऐसे क्यों कर रहा हूं। देखिए ये वेरी पेक्यूलियर बिजनेस है। आइटम क्वांटिटी जो सीरियल नंबर 1 2 3 जो एक का नीचे एक हो जाता है वो इनको नहीं चाहिए। ही डजंट वांट टू वांट द प्रिंट आउट टू बी लाइक दैट। व्हाट ही वांट्स इज bag numbers 1 2 3. They will understand that exactly the weight of that because it is a routine practice at Maharashtra. They know that that is the way, and BC has to help them according to their routine practice. Their routine practice is they pile up the bags from left to right. There will be 5 bags, and the 6th bag will sit on the first bag. Whatever the value you see here on the invoices, they take the invoice and they will check the row number and they will immediately understand that what is the weight of that. That means the weight corresponding to that particular bag. They will go near the lot. When they go near the lot, they will see it and they will immediately recognize what is the weight of it. So they won't go to weighing scale again and again. This is a routine practice even at mandis. आपको कोई राइस मिल या कोई मिल चला गया तो आपको समझ में आता है कि आपको देखते हैं पाइल ऑफ बैग्स, राइस बैग्स, व्हीट बैग्स, जवर बैग्स,
ऐसा आप जब कभी एक मंडी पे जाते हो तब आपको यू कैन सी द पाइल ऑफ बैग्स, एक का ऊपर एक जो किया है वैसे है नहीं, इनका प्रिंट भी वैसे ही नहीं. आई कैन नॉट टेक द प्रिंटिंग प्रोसेस समथिंग लाइक अर्लियर व्हाट इट इज व्हाट दैट इज बीइंग डन एट A5 और स्टैंडर्ड इनवर्स फॉर्मेट. ये फॉर्मेट तो इनका पास काम नहीं करता है. दैट विल नेवर वर्क विद देम. सो दैट विल नॉट वर्क विद देम. दिस इज देयर रूटीन प्रैक्टिस. अब इसके बाद एक प्रिंट करके देखता हूं. अब सुपारी में आके प्रीव्यू में देखता हूं. सी इट हैज कम सुपारी मंडी नासिक, स्लिप नंबर, यहां डेट. ओके. अब जो सीखने वाला चाहता है वो सीखने के लिए यूज करो, अदरवाइज इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर normal business. This type of situation will never come in the normal business. So if you are really interested, look into it, because it's a new type of business. It depends upon your skill. How do you adapt your skill? So I have thought, when the party approached me, I said yes, it is possible, and I have applied my idea like this. He actually wanted the output to come like this, but in fact he wanted 330 bags in a single invoice. For that we have to increase the maximum number of entries per voucher. That option is there and you have to find it out, but I have not changed it. I have just fixed it to 128 bags. That is, you can add 128 type of items in a single invoice. I have not changed that, because I never felt that it is necessary for me to do like that. To just give an idea for the young designers so that they can learn invoice designing or document designing very easily in BusyWin. अब देखिए, अब आगे बढ़ता हूं. अब सुपारी का प्रीव्यू देखता हूं. यहां मैं जाके ओचा कॉन्फ़िगरेशन में भी एक चेंज कर सकता था. सी अब देखिए, दैट इज 3 इंच. देखिए 0.1 इंच का लेफ्ट साइड मार्जिन कितना नजदीक आ गया. दैट इज द मिनिमम परमिसिबल लिमिट, 0.1 इंच. आई हैव सेलेक्टेड दैट 0.1 इंच एंड अब देखिए, ये तो पीओएस मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर पीओएस में मैंने ले लिया तो इनका बिजनेस बहुत मुश्किल हो जाता है. Because every time going to every bag and checking whether that is less or more, it will become very difficult for them. So as such, I have not taken that. ये देखिए, मैं 28 into 1.2 divided by 1.5 फॉन्ट 15 के लिए 22.4, वो तो ठीक है. ये प्रॉब्लम क्या हो चुका है, यहाँ पे स्लिप नंबर ये जो एक्सेस जो चला गया है. अब आगे बढ़ने से पहले कंपनी का नेम तो ठीक है 19. अब तो मुझे अब मैं लेता हूं एसक्यूएल क्वेरी. अब मैं लेता हूं क्वेरी का नाम. देखिए अब मैं कैसे लिखता हूं. बैग समय the party who approached me want the bags to be printed from left to right. If you go to item body and if I change my SQL query to item details, that is category type to item detail, it is not possible to print. क्योंकि अगर मैंने स्टैंडर्ड इनवॉइस फॉर्मेट प्रिंट करने के लिए गया तो item number 2 will appear after item number 1 and item number 3 will appear after item number 2. Similarly, like that it is going on. Whereas in this case, party wants everything to be printed, that is 5 bags to the right and 5 bags to the left. दोनों को भी हटा देता हूं. यहां लिखता हूं लेफ्ट साइड में कंडेंस ऑन एंड यहां लिखता हूं कंडेंस ऑफ. मैंने टेक्स्ट इसीलिए लिया क्योंकि मैं जानता हूं ये न्यूमेरिकल फील्ड में भी आता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल फील्ड में वैल्यू 0 हो गया तो हर इनवॉइस का बॉडी में 0 0 0 बोल के आते ही रहता है.
ये मैं देख नहीं पाता हूं, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ रो नंबर 2 कर देता हूं. दैट इज serial number 2 will appear to the right side of the serial number 1. Now serial number 3 will appear to the right side of the serial number 2. Similarly serial number 4 and serial number 5 will appear to the right side of the serial number 4. इनवॉइस का बॉडी में सीरियल नंबर 4 का राइट साइड में आ जाता है. अब सेव कर देता हूं. अब यहां पे आके प्रिंट प्रीव्यू में, प्रिंट प्रीव्यू अभी देख रहा हूं. अब प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, आप देखिए एरर एरर एरर. There are 5 items and 5 items has come here. Now I have to go back to my query. Yes, see, it's in the last line instead of and AD हो गया है वहां पे. अब मैं and टाइप कर देता हूँ. That may be capital, small letter, doesn't matter. अब and टाइप कर दिया. अब and टाइप करने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ. अब देखिए क्वांटिटी आपको आ गया. अब क्वांटिटी आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे दिस इज द वे ही वांट टू प्रेजेंट. सीरियल नंबर 1 इज 71.9, सीरियल नंबर 2 इज 68.3. देखिए यहाँ 71.9. सिमिलरली आई एम गेटिंग द आउटपुट. सो सॉरी, आई हैव टू सी इट फ्रॉम सुपारी. दिस इज व्हाट ही वांटेड टू प्रेजेंट द आइटम वे इन दिस फैशन. नाउ आई हैव टू कंटिन्यू. कंटिन्यू कैसे कर सकता हूँ, आई विल कॉपी दिस लाइन and I will copy and paste it below, because see I have to do it like this because I have not, it will never come at item details query type में. If you go for item details and then you cannot write the query like that. Now see 6 यहाँ जो रो इसको to 2 डिलीट कर देता हूँ, सेकेंड रो में 7 कर देता हूँ. now रो इसको to 3 डिलीट कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ. यहाँ रो इसको to 4 को 9 कर देता हूँ, रो इसको to 5 को 10 कर देता हूँ. अब सेकेंड रो में 10 कर दिया. सिमिलरली यू हैव टू ऐड 25 लाइन्स वन बिलो द अदर लाइक दिस, क्योंकि आपको एक इनवॉइस में रैंडमली कितना पीस आता है वो तो पता नहीं रहता है. अगर आ गया तो मैं बाद में व्हेन यू आर यूजिंग इट आई कैन नॉट गो एंड ऐड लाइन्स. सो इट इज बेटर टू हैव द लाइन्स एट द बिगिनिंग इटसेल्फ. आपको 128 आने के लिए 25 लाइन्स को टाइप करना पड़ेगा. बट यहां तो मैंने वो 25 लाइन्स नहीं लिया है. अब यहां पे रो इसको to 5 जाके रो इसको to 15 हो जाएगा. मैं 3 में स्टॉप कर देता हूं. मैं आइडिया दे रहा हूं आप लोगों के लिए, आप इस आइडिया का फायदा उठा सकते हो. जिसको सीखना है वो सीख सकता है. ये 4 लाइन्स आई हैव टेकन. नाउ दैट इज 17, इट विल कम 17. वो 3 है, 3 को जाके 18 होना पड़ेगा. 18 अब आता है 4 जाके 19 बनेगा. अब 5 जाके 20 बनेगा. जो आप यू आर वॉचिंग इट ऑन द स्क्रीन नाउ. राइट नाउ यू आर वॉचिंग इट ऑन द स्क्रीन. ओके. अब सेव तो करना पड़ेगा मुझे. ये क्या हुआ, सेव हो गया. अभी 5th लाइन आ रहा है 21. यहाँ तो 22, यहाँ तो होगा 23. 18 plus 5 is 23. Similarly, it's across my verification. Now it will come to 24. Now it will come to 24. Now it will come to 25. Now it will come to 25. 25. अब सेव कर दिया. अब एक बार प्रिंट के लिए, प्रीव्यू के लिए देखता हूँ. अब when I see print preview, देखिए अब तो इतना तो आ गया, बट नथिंग हैज कम और नॉर 0 हैज कम. 0 वुड हैव कम इफ आई हैव यूज्ड SQL क्वेरी टाइप टू नंबर. सो इन दिस केस आई डोंट वांट टू यूज इट टू नंबर, सो इट हैज कम लाइक दिस. बट यह थोड़ा awkward लग रहा है क्योंकि सुपारी मंडी नासिक तो लेफ्ट को स्लाइड हुआ जैसा लगता है. वो बाद में देखता हूँ उसका प्रॉब्लम क्या है, वो मैं बाद में देखता हूँ. अब सेल में नहीं मुझे, बस अभी अब इतना तो हो गया. अब अगला, अब क्या हो गया, अब टू 25 आइटम्स बिल करने के लिए, 25 सीरियल नंबर बिल करने के लिए हमने तो पूरा व्यवस्था कर चुका है. अब एक
मैं थोड़ा कैलकुलेट कर रहा हूँ 15-20 लाइन के नीचे, because I have 57 lines at the body. Here I am going to write BLH comma 28 comma C. CIA कुछ भी लिखो वो कोई बात नहीं। अब इतना लिखने के बाद प्रिंट व्यू में देखता हूं, देखिए 3 इंच में इतना तो मुझे मिल गया। ओके ठीक है, अभी डेट के बाद एक 2 डिजिट बाहर जा रहा है, दैट आई विल करेक्ट लेटर। अब कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करने के बाद अब एक दूसरा क्वेरी लिखने जा रहा हूं, सुपारी 2। अब सेलेक्ट क्या सोच रहा हूं, सेलेक्ट सम ऑफ tran2 dot d1 from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 2 and tran2 dot rect type is equal to 2। मैं अभी क्वांटिटी ग्रैंड टोटल ले रहा हूं, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ केजीस ये तो ले रहा हूं। D8 में मुझे मिल जाता है क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव यूनिट। D1 में मैं अब क्या किया, रिजल्ट तो आ गया बाहर 314 4.9 वो तो आ गया। अब इसी क्वेरी को प्रिंट को भेजना है मुझे, अब एंटर दबा देता हूं और एंड लिख देता हूं। 4th लाइन में लिखता हूं वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड, या क्वेरी टाइप में डायरेक्ट एसक्यूएल से मैं लेके आई एम मेकिंग दैट क्वेरी टाइप टू voucher header inventory. Oh, it's not needed grand total inventory. Okay, it doesn't matter. Anyway, that will come in the printout. Footer, I have selected footer. Now I'll go back to the last line where I wrote BLH comma 20. अब मैंने CPI 12 ले लिया, अब CPI 12 ऑफ किया। अब इन बीच में आई क्या कर देता हूँ, SQL क्वेरी लेता हूं, क्वेरी लेके नंबर लेता हूं, नंबर लेके नेम तो आई एम गोइंग टू मेक इट सुपारी 2 दैट विल बी 12 डिजिट। अब इसके बाद यहाँ अब ब्लैंक स्पेस डाल देता हूं, ब्लैंक स्पेस ऑफ 22, सेव किया। अब रन करके देखता हूं प्रिंट में, मुझे तो ग्रैंड टोटल मिलना चाहिए सुपारी। अब देखिए ग्रैंड टोटल तो मिल गया, बिकॉज दैट ग्रैंड टोटल वोंट कम टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, सो देयर समथिंग, यस देयर इज अ रॉन्ग, देयर इज अ मिस्टेक। ओके, आगे बढ़ता हूँ, आगे क्लियर कर देता हूँ, आई विल क्लियर इट इन द फ्यूचर स्टेप्स। नाउ आई विल अगेन गो बैक टू परचेज इनवॉइस डिजाइन in the footer। अब ये ब्लैंक स्पेस को इन्वर्टेड कॉमा के इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर लेता हूं, इसको टेक्निकली व्हाट दे कॉल आई डोंट नो, यहां लिख देता हूं, यहां लिखता हूं क्वांटिटी ग्रैंड टोटल ब्रैकेट में केजीस इन टर्म्स ऑफ केजीस, in terms of kgs. Okay, close 21 it's 18, cover 3। अब प्रिंट करके देखना पड़ेगा, कमा 1। I have a provision for 34 spaces, 13, 14 plus 32. Okay. Now I have selected bold done, and here before CPI 12 off, I will close that tag by bold off. अब CPI on CPI off लेता हूँ,
सेव कर देता हूं। अब क्विट किया, क्विट करके अब आई एम गोइंग टू राइट वन मोर, सुपारी 3, select sum of tran2 dot sum of tran2 dot d5 from tran2, where tran2 dot voucher type is equal to where tran2 dot voucher type is equal to 2 and tran2 dot rect type is equal to 2 to 2। अब एग्जीक्यूट सेव किया, अब एग्जीक्यूट करके देखता हूं, इट इज 1,09,619, यही तो ग्रैंड टोटल है। अब इनवर्स डिजाइन में आ गया, यहां पे क्रॉस वेरीफाई करके देखता हूं तो सेम है। अब ऐड लिख दिया, ऐड लिख के यहाँ tran2 डॉट वोचर टाइप वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड ऐड कर दिया। क्वेरी टाइप में आई हैव सेलेक्टेड वोचर हेडर इन्वेंट्री, इट्स ओके, टेकन ग्रैंड टोटल, दैट डजंट मैटर, ग्रैंड टोटल विल कम इन द प्रिंटिंग इट फूटर, इन फूटर। अब यहां लिख देता हूं, सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूं, सिर्फ नेम चेंज कर देता हूं, जो चेंज करना है उसी को चेंज कर देता हूं। कॉपी पेस्ट किया, यहां तो लिख देता हूं सुपारी 3 एंड हियर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ग्रैंड टोटल केजीस को हटाना पड़ेगा। अब मॉडिफाई करके देखता हूं, सुपारी प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं तो ओके, अब आता हूं, लिखता हूं 25 एंट्री में आता हूं, फुटर पे आता हूं, फुटर पे आके अब क्या कर देता हूं, अब चला जाता हूं अब आगे बढ़ता हूं, यहां आके इसको आई वांट टू मेक इट 21 एंड हियर 12, 33 plus 1 34, doesn't matter, 12 and that to 21, अब क्या कर देता हूं, प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, यहां पे देखता हूं, अभी स्क्रॉल डाउन करके देखता हूं, अमाउंट ग्रैंड टोटल तो आता था, इट इज 1,09,169। अब क्वेरी और भी थोड़ा बढ़ा लेता हूं, अब नीचे जाता हूं, यहां लिखता हूं ग्रैंड टोटल, लिखता हूं अमाउंट टोटल, बस। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, अमाउंट टोटल में आ गया, यहां पे आ गया 1,09,169। ओके, ठीक है, ये भी ठीक है। अब
बैलेंस, आई वांट टू चेक द बैलेंस इन टर्म्स ऑफ बोथ यूनिट्स. देखिए अभी बैक का भी हिसाब होना है, वो कन्वर्शन फैक्टर कैसे भी रहने दो, ठीक है. अब देखिए सुपारी ग्रेड ए 212 kg है, सुपारी बी है, उनका बैक भी आ गया. सो आई गॉट दी क्वांटिटी फिगर इन टर्म्स ऑफ ड्यूअल वाउचर्स, इन टर्म्स ऑफ ड्यूअल यूनिट्स. अब आई वांट टू मेक वन मोर क्वेरी. its name will be query 4. That will be, I want to print quantity in terms of kgs. बैक का हिसाब से हमें पता नहीं चलता है, पेमेंट तो होता है केजी का हिसाब से. इसलिए अब क्या होता है, हिसाब होता है केजी का हिसाब से. अब name alias from help on where code is equal to tran2 dot master code 1, master code 1, sum of tran2 dot value 3 from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 2 and tran2 dot rect type is equal to 3 लिखता हूं यहां पे. tran2 dot rect type is equal to 3 लिखता हूं. मेरा उद्देश्य क्या है, my purpose is I want to print whatever the bill sundry that comes in a single click. To make that single click I have to add bill sundry SR number. In this case, as I have taken it from the footer, it is not possible for me to add bill sundry footer. अब सेव कर दिया and now I have saved it and I am running the query. After executing the query, now I want to make the query in the ascending order. I want to set the query order as ascending. After setting ascending, first P will come and where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code, but I won't write anything regarding bill sundry serial number. That's all, because bill sundry serial number is in the standard invoice format. It is coming under bill sundry section that is looped. At the back end of the section they have written a loop. If you just write the query once, whatever the values you have, it will automatically take the values, because at the back end there is a loop. Busy me, they have written a loop. So in this case I am not writing, I cannot take that because there is no loop at the footer, and that name is Supari 4. Row is equal to 1, comma, column is equal to 4. In this case, that Supari query 3 should be converted as 4. Row is equal to 1, comma, column is equal to 2. अब सेव कर देता हूं. सेव करके प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं. जब मैं प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, यहां तो मुझे मिलता है कुछ नहीं, नाम तो नहीं आया. अब नाम आने के लिए जो वहां क्वेरी पे मैंने गलती किया है इनवॉइस डिजाइनिंग में, उसको तो ठीक करना पड़ेगा. कॉलम इज इक्वल टू 4 किया है, दैट इज नॉट कॉलम इज इक्वल टू 4. सुपारी 4 पे है, कॉलम इज इक्वल टू 4 किया है, दैट शुड बी कॉलम इज इक्वल टू 1. सोच रहा हूं मैंने क्या गलती हुआ है. अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, नाम तो आना ही, पैकिंग एंड हमाली चार्जेस 150.
So packing and Hamali करना पड़ेगा. अब I want to alter that. So after selecting that, I have pressed Control M. So instead of Hamali charges, I will to make it Hamali because it's a 3-inch inverse pattern. Up now I'm going to change that. It actually costs 30 rupees per bag, even at Supari Mandi. देखिए पैकिंग एंड हमारी 150 रुपीज हो गया. अब आई हैव टू ऐड वन मोर, नॉट वन मोर, 4-5 items like that. (2080 to 1.2 divided by क्या है? अब यहां पे आके टेस्ट करता हूं. एटीन 19 वो तो ठीक है, वो तो ठीक है. वो तो ठीक है. अब स्लिप में क्या होता है, यहां तो गलती हो रहा है. अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, अब तो ठीक हो गया. अब दूसरा बिल्स एंट्री ऐड करना पड़ेगा. उसको कॉपी करता हूं, रोल नंबर को 2 कर देता हूं बिकॉज देयर इज नो कंटिन्यूटी इन प्रिंटिंग. रोल नंबर तो 2 कर देता हूं, यहां भी रोल नंबर 2 कर देता हूं. अब रोल नंबर 3 कर देता हूं. अब रोल नंबर 4 कर देता हूं, यहां भी रोल नंबर 4 कर देता हूं. अब रोल नंबर 5 कर देता हूं. रोल नंबर 5 कर देता हूं. अब सिमिलरली लिया. अब कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया. अब वो क्या लेके जाता हूं, देखता हूं नीचे अगर आइटम नाम नहीं है इसलिए वो नहीं है, नाम है ऑटोमेटिकली आ जाता है. ठीक है, ठीक है. अब क्या कर देता हूं, यहां क्वांटिटी इन केजेस दिया, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ग्रैंड टोटल इन टर्म्स ऑफ बैग्स नहीं आया है. अब दोबारा कंटिन्यू कर देता हूं. हेडर भी नहीं, फुटर पे ऐड
सुपारी 5, सेव, select sum of tran2 dot value 3, tran2 dot d1 d8, tran2 dot value 3 from tran2, where tran2 dot voucher type is equal to 2 and tran2 dot rect type is equal, no, voucher type is 2 is enough. That is the final amount. This already I have got it. Once I have got it, and it is there in my bill also. So I go back to voucher series configuration. Here in the print voucher, now I'm going to change that invoice configuration, that's to Supari. Okay, and tran2 dot voucher code is equal to @voucher code. अब सेव किया, सेव करने के बाद अब CPI ऑन, CPI ऑफ, यहां पे ध्यान देता हूं अमाउंट ग्रैंड टोटल, तो नेम लिखूंगा सुपारी 5, यहां लिखता हूं (1, C, amount payable, grand total. ये तो हो गया, अब ग्रैंड टोटल तो आ गया. अब आई वॉन्ट दिस अमाउंट टू बी प्रिंटेड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स. ये तो ग्रैंड टोटल आ गया. अब आई वॉन्ट दैट ग्रैंड टोटल टू बी इन वर्ड्स. अब सुपर पे ग्रैंड टोटल को वर्ड्स में आने के लिए मैं बिजी का डिफॉल्ट फंक्शन ही यूज कर देता हूं. मैं बिजी पे एसक्यूएल भी यूज कर सकता हूं, बट आई डोंट वांट टू यूज एसक्यूएल हियर. बोर्ड ऑफ, ये पूरा और डिजाइन्स है. मैं आपको इसलिए मैंने यूट्यूब को अपलोड किया क्योंकि अगर if someone is interested, let him study. It is 34, 32. Again in the line 2 I will be adding 32 digits, and it is line 2. Okay, अब अमाउंट इन वर्ड्स तो आ गया. अब क्या है, क्वांटिटी ग्रैंड टोटल इन टर्म्स ऑफ बैग्स भी मुझे होना चाहिए. वहां CPI ऑन CPI ऑफ कर देता हूं.
और फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट टू स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड कर देता हूँ. अब आई कैन यूज दैट फॉर 34 कैरेक्टर्स. स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड कर देता हूँ. 18 कैरेक्टर यहाँ कंपनी नेम लेता हूँ. यहाँ तो 34 को ही लेना पड़ेगा. 34 कॉमा सी. अब आके देखता हूँ. बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ दो भी हो गया. अब कंपनी का नाम भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि it is already having capital letters, so it looks very ugly. Now I have to change that company name into small letters. Now we'll go back to edit, and here in edit I will edit company name. बस सुपारी बंडी बस. अब सेव किया. अब प्रिंट प्रीमियर देखता हूं. ओके, अब तो सुपारी मंडी आ गया बीच में, ठीक से आ गया. अब वो दो लाइन को हटाना पड़ेगा. वो लाइंस कहाँ पे है? वो हेडर और बॉडी पे है. फुटर तो ठीक है, उसको हटा देता हूं. और वहां लिखता हूं CPA टोलो ऑन, CPA टोलो ऑफ लेता हूं. यहां लिखता हूं वेट इन केजीज. इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं वेट इन केजीज. कमा 34 कमा सी. अब सेव कर देता हूं. अब एक क्वेरी ऐड करना पड़ेगा. एटीन केजीस हो गया. अब पूरा बी को हटा देता हूं. ग्रेड ये पूरा डमी एंट्रीज. भीतर टिकर दिया. इस पर ग्रेड ये अब 63 kg ले लिया. अब 58.6 ले लिया. देखो गलती कर रहा हूं मैं वहां पे, क्योंकि कन्वर्शन फैक्टर मैंने ठीक से कन्वर्शन नहीं किया फॉर 5, 6, 7 आइटम्स. या ऐसे गलती आप मत करो. देखिए 7 आइटम 5th एंड 6th ऑटोमेटिक, 6th एंड 7th एज ऑटोमेटिकली कम. अब लास्ट और एक क्वेरी लिखना पड़ेगा. ये थोड़ा जगह हटा के अब एक क्वेरी लिखना पड़ेगा. बॉडी पे जगह थोड़ा हटा देता हूं.
बॉडी नहीं है, सॉरी, फुटर में। अब देखिए अब बेल में कवर ये लगा देता, बेल में कवर है हॉरिजॉन्टल स्पेस, ब्लैक स्पेस। हर जगह पे एक ब्लैक स्पेस तो लगाना पड़ेगा। Even in all 5 lines I have to add that one blank space. It's no other go and I have to add it because I want to have a good appearance in my inverse design, and there's no other go, I have to add. That's all. अब तो फिनिश होते आ गया। ठीक है, अभी सेव करके देखना पड़ेगा। अब प्रिंट व्यू में देखता हूं, अब तो ठीक हो गया। अब नाउ आई वांट दैट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ केजीज तो हो गया, अब इन टर्म्स ऑफ बैग्स भी मुझे चाहिए, इसलिए और एक क्वेरी तो लिखना पड़ेगा। आई वांट दैट क्वांटिटी बी गिवन इन टर्म्स ऑफ, अब सुपारी 6, select star from tran2 where tran2.voucher type is equal to 2 and tran2.rect type is equal to 2. rect type is equal to 2. अब मुझे क्या चाहिए, सब ऑफ tran2.d8, क्यों सम ऑफ, क्योंकि कितना बैग्स है उतना का भी सब मुझे आना चाहिए। 7 बैग्स है, 7 बैग्स का सम चाहिए। अब इसको लास्ट लाइन को ढकल देता हूँ, आई विल थ्रो दैट टू द लास्ट लाइन एंड हियर आई विल गोइंग टू ऐड वन मोर क्वेरी लाइन वेयर tran2.voucher code is equal to @voucher code। यहां तो रहता हूं voucher हेडर इन्वेंट्री। अब क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बैग्स भी मैंने ले लिया, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बैग्स वो भी ले लिया। टोटल बैग्स यहां क्या कर देता हूं, 6 कर देता हूं, बस अब हो गया। अब प्रिंट व्यू में देखता हूं, देखिए अब तो क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बैग्स पे मुझे मिल गया। अब क्या है,
अब आगे बढ़ने से पहले शायद सब कुछ ठीक लगता है, फिर भी there's one more query I'm going to write. Supari 7 is my last query in this series. Select tran2 dot d5 from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 2 and tran2 dot rect type is equal to 2, क्योंकि मुझे रेट तो मेंशन करना पड़ेगा। $330। अब लास्ट लाइन को ढकेल देता हूं एंड वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू एट द रेट वोचर कोड। इसी क्वेरी को प्रिंट में लेके जाता हूं। यहां को मैंने मेरा ये सुपारी बिल का परचेज मैंने किया। सिमिलरली सेम फॉर्मेट आप सेल्स को भी बना सकते हो, वेयर वोचर टाइप इसको तो 2 के जगह पे 9 लेना पड़ेगा, बस बाकी सब कुछ सेम। अब रेट तो डालना पड़ेगा, वहां पे तो लिखना पड़ेगा रेट, यहां तो लिखना पड़ेगा रेट पर केजी, वहां तो क्वेरी नंबर 7 अब हो गया एंड दिस इज द एंड ऑफ इट। दिस इज द एंड ऑफ इट। अब रेट पर केजी भी आ गया, ग्रेड के लिए रेट पर केजी भी आ गया। अब फुटर में अब क्या करना पड़ेगा, एक्सेस लाइन को हटाना पड़ेगा, कलर ऐड कर रहा हूं। कलर ऑफ बोल्ड ऑफ करके फिनिश करता हूं। अब ब्लू कलर ले लिया, वो कलर का वैल्यू वहां पे ऐड कर दिया। अब इनवॉइस देखता हूं, मुझे ब्लू इनवॉइस, नॉट एवरीथिंग, ओनली दी अमाउंट ग्रैंड टोटल वे वो ब्लू में आता है। अब आके यहां देखता हूं, देखिए ब्लू में आ गया। यहां को मेरा इनवॉइस डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हेडर का लाइन हटा देता हूं, सेव किया। बॉडी का लाइन हटा देता हूं, वो लाइन हटा देता हूं। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, अब देखिए एकदम पक्का फर्स्ट क्लास आ गया। बस यहां को स्टॉप कर देता हूं।